Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. How are you all? Good, ma'am. How are you? I'm fine. Okay, I want to say one thing. I was just checking out your assignments, and Yes. you will be amazed to know that I will be really, matlab, I have no words. I was very sad after looking all your assignments because I have said number of times to all of you कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना है, और उन क्वेश्चंस में डायग्राम थे। एक भी बच्चे ने डेटा इंडिपेंडेंस या डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो वो लेयर्ड डायग्राम है वो किसी ने नहीं ड्रॉ किया। मोरओवर, I have given one short note on specialization, generalization, इस पे दिया था ना एग्रीगेशन पे, किसी ने वो डायग्राम नहीं बनाए। अरे आप बिना डायग्राम के हाउ कैन यू एक्सप्लेन स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन? ईआर डायग्राम सबको बनाने थे ना। यू हैव टू शो द सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन के लिए, जो ट्रायंगल सिंबल यूज करते हैं और एरो कैसे आते हैं। बिना इसके आप लिखा एग्जाम में भी अगर ऐसे करके आओगे, आई आई विल आई एम सेइंग कि आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और यू आर टेकिंग असाइनमेंट्स एज जस्ट फॉर्मेलिटी, इजंट इट? किसी का असाइनमेंट कोई और लगा के दे रहा है, मतलब ये भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, नाम किसी का है, उसके अंदर असाइनमेंट किसी और का है। नो मैम, हमने खुद ने लिखे हैं। आपने लिखा है, एटलीस्ट आई हैव। बट आई एम टेलिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज असाइनमेंट्स को सीरियसली लीजिए, और असाइनमेंट्स को जब आपके पास टाइम हो तब अच्छे से करिए, ठीक है? फॉर्मेलिटी की तरह एक कॉपी पेस्ट करके सबमिट मत करो। आई नो यू हैव वन ग्रुप जिसमें एक बच्चा कर लेता है, फिर उसमें फॉरवर्ड हो जाता है, सब बच्चा उसी को कॉपी कर लेते हैं। आई नो दैट, बट Ma'am, प्लीज। I haven't done that. Just for the record. ओके अक्षत, ठीक है, मैं आपका चेक करती हूँ दोबारा से, और आपको बताती हूँ कि आपने आपने डायग्राम्स ड्रॉ किए थे। I don't remember. I am checking it right now. All right. So, what is the agenda of today's class is, see, we have two classes continuous, and this class supposed to be your lab class. But in today's class, I am not taking your lab class because there's some problem in my software, so I couldn't able to work. And we will be doing some numericals on relational algebra in today's class, and then in the next class, that is just continuous to this, हम उसमें we will be doing a new topic of relational algebra, that is relational calculus, ठीक है? So just take out your pen and paper or some notebook जिसमें आप notes बनाते हो, ठीक है? और ये स्कीमा ड्रॉ करो सबसे पहले, just draw this schema everyone. आपको याद है, आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 3.5 ऑफ योर रिलेशनल अलजेब्रा। ये आपकी बुक है कोर्थ, जो आपकी कोर्थ बुक है ना, उसका ये क्वेश्चन मैंने दिया था। किसी ने ट्राई किया इसको सॉल्व करने के लिए? यस, एनी वन ऑफ यू ट्राइड दिस क्वेश्चन बिफोर? नो, इजंट इट? किसी ने नहीं ट्राई किया? चलो, we will be solving this question because this is a very important question. Moreover, what we have studied in relational algebra. क्या होता है relational algebra? Yes, who will tell me? Tanuj Agrawal. What is relational algebra?
Aman Gupta. Arey, I'm not asking such a difficult question. Am I asking a very difficult question to you all? और क्लास की स्ट्रेंथ इतनी लो क्यों है आज? मैम पता नहीं आज सब क्लासेस में ही है। हम फेस्टिवल्स के चक्कर में शायद मोस्टली बच्चे नहीं ले रहे क्लासेस। I know, मे बी। चलो कल अब क्लास है तो लेनी तो पड़ेगी। ओके ठीक है। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ अ procedural language. Procedural language में that means you have to, in order to query something from the database, you have to tell the steps, you have to properly specify that how the data is going to retrieve from the database. This is what relational algebra is. Then in relational algebra we have studied the various operations. कौन से operations पढ़े हमने? We have studied about the select, how to select the corresponding tuples based upon the condition. If the condition is true, the following tuples will be fetched from your database. Then we have studied about projection. Projection में again we are concerning about the attributes. तो हमें अगर प्रॉपर कुछ एट्रीब्यूट्स को फेच करना है, कुछ कॉलम नेम्स को फेच करना है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? वी विल यूज प्रोजेक्शन ऑपरेशन। देन फिर हमने सिलेक्शन प्रोजेक्शन के बाद कुछ ऑपरेशन पढ़े थे लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, रीनेम। यूनियन क्या होता है? इफ आई एम सेइंग R1 यूनियन R2, देन व्हाट हैपेंड? R1 आपका एक रिलेशन है, R2 एक रिलेशन है, तो यूनियन का क्या मतलब है? All the tuples that are in R1 and that are in R2 will be fetched, and the tuples जो R1 और R2 दोनों में है will be appear only once, क्योंकि यूनियन जो है उसमें डुप्लीकेट टपल्स अलाउड नहीं होते। सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 मींस all the tuples that are in R1 and R2, जो दोनों में है सिर्फ वही टपल्स आएंगे। Remember? Then we have done about rename. Rename क्या होता है? Rename basically if we want to rename a particular column या कोई भी टेबल को rename करना है, जैसे हमारे पास एक let's suppose we have this table, works नाम की टेबल है, ठीक है। Now I want to rename this, तो rename के लिए I will use the operator। कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? रो ऑपरेटर। I don't have this operator, that's why I'm using this p sign। तो रो सबस्क्रिप्ट के अंदर I will write the name of the new name, और फिर किसका नाम बदलना है? मुझे वर्क्स का नाम बदलना है, तो इसका जो वर्क्स का नाम विल बी works2 नाउ, ठीक है। तो रो और रीनेम ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर चेंजिंग द नेम। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, नेचुरल जॉइन हमने पढ़ा है, देन वी हैव स्टडीड अबाउट इनर जॉइन, आउटर जॉइन। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा। इज इट ऑल क्लियर टू यू? सब क्लियर हुआ है रिलेशनल अलजेब्रा में हमने जो पास्ट क्लासेस में पढ़ा है? Yes, ma'am. Now we are using this concept and we are just solving out the queries. Now just look this query. अच्छा, just take out a pen and notebook, और सबसे पहले इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए you need to just draw the schema around, ठीक है। ये वाला जो स्कीमा है इसको ड्रॉ करो, राइट करो, ये वाला स्कीमा, this you have to draw, or sorry draw नहीं करना, you have to write this schema, employee, works, company and managers। इस वाली चीज को कॉपी कर लो, so that we will be solving this and we will be using this। so बार बार मुझे ऊपर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। so are you all noting it down? नोट कर रहे हो सब? अरे Yes, इधर ma'am. you can say yes no। हाँ जी, Yes, ma'am. हो गया? क्वेश्चंस रीड करें अब। जो आपकी एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, पर्सन नेम, स्ट्रीट और सिटी, वेयर पर्सन नेम इज द प्राइमरी की। सिमिलरली वर्क्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर पर्सन नेम, कंपनी नेम और सैलरी है। अगेन पर्सन नेम इज द नेम ऑफ द प्राइमरी की, कंपनी में कंपनी नेम है और सिटी है, कंपनी नेम इज द प्राइमरी की, एंड मैनेजर्स, उस कंपनी को कौन मैनेज करता है उसकी डिटेल स्टोर है, पर्सन नेम और मैनेजर नेम। पर्सन नेम आपका प्राइमरी की है। तो ये 4 आपके स्कीमास है, and by using all these schema we'll be solving the query. Now the very first query is find the names of all employees
who work for First Bank Corporation. Now आपको company name given है. Company name क्या है? First Bank Corporation, and you have to find out all the employees who works for this particular company. Now among the 4 tables, which table do we use? कौन सी टेबल यूज करेंगे? Employees, ध्यान से देखो. Works. Works. We will Works. use the works table. देखो हेमंत employee table use नहीं करेंगे हम. क्यों? क्योंकि हमें कंपनी का नाम given है, and by using the company name we will be fetching all the attributes. मतलब कौन सा attribute fetch कर रहे हैं? Person name वाला, है ना? Because हमें question में बोला है we have to find the name of the employees. तो क्वेश्चन को समझ के सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि which table or which tables we are going to use, and in this question we are just using the very first table. There's only one table, that is works table में जहां पर कंपनी नेम आपको पहले तो सिलेक्ट करो. सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है वर्क्स टेबल में क्या सिलेक्ट करना है? कंपनी नेम जिसका फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है. सो सारी टपल सिलेक्ट कर लो जिसका कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है. उसके बाद प्रोजेक्शन लगाओ, और प्रोजेक्शन किस पे लगाओ? पर्सन नेम पे. सो फर्स्ट क्वेरी क्लियर है? फर्स्ट क्वेरी का सोल्यूशन ये है. जस्ट नोट डाउन द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेरी, एंड एज आई टोल्ड यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द सिलेक्शन ऑपरेशन. आपको सिलेक्ट करना. देखो, सिलेक्ट कंपनी नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन. किसमें? वर्क्स में से. और फिर पूरे में से क्या करना है आपने? प्रोजेक्ट क्या करना है? जहां पर पर्सन, सिंपल पर्सन नेम. फर्स्ट क्वेरी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नोट कर लिया आपने? नोट किया? जस्ट नोटेड इट डाउन. नोट करो सब लोग. Now shall we proceed to the next query? Next query क्या है? We have to find the names and cities of all residents of employees who work for the First Bank Corporation. Now again, just look this database. We have to find the city and residence of all the employees. इनका company name क्या है? First Bank Corporation. अब मुझे बताओ कौन सी टेबल यूज करेंगे हम? Employee. एम्प्लॉय टेबल से काम हो जाएगा. देखो आपको कंपनी नेम. 2 टेबल लगेगा. हाँ जी, मैम 2 टेबल यूज होगा, एम्प्लॉय और वर्क्स. yes, we will use 2 tables because यहाँ पर आपको एक तो आपको सिटी और स्ट्रीट, मतलब रेजिडेंस भी निकालना है ना. तो सिटी और स्ट्रीट चाहिए, ऊपर से कंपनी नेम भी चाहिए. तो you are going to join. सबसे पहले आप ज्वाइन कर रहे हो किस किस को? एम्प्लॉय को और वर्क्स को. और कौन सा ज्वाइन करोगे? यस, जस्ट टेल मी आउट. कौन सा ज्वाइन करेंगे? यहाँ पर देखो, पर्सन नेम एंड पर्सन नेम आर सेम. When both the table have one common attribute, then we are going to use a join जिसको बोलते हैं natural join. तो यहाँ पर you are using natural join. You will simply write employee join works. Got it? और क्योंकि आपके इनके कॉमन एट्रीब्यूट है. और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन. You have to find the names and cities of residence of all the employees who work for the First Bank Corporation. तो सबसे पहले आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया पर्सन नेम के बेस पे. ठीक है. देन कंपनी नेम और वर्क्स में से पहले तो आपने ज्वाइन कर दिया, फिर उसमें सिलेक्ट करोगे कि कंपनी नेम जहां पर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है, और फिर सिलेक्ट करके आपके पास वो सारी टपल्स आ जाएंगी जिनका कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है. और उन टपल्स में कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे? यस, अमन, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे उन टपल्स में? अमन, यस, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रियंका, आर यू गेटिंग इट? प्रियंका, सचिन, Yes. रोल नंबर 134.
बस आपकी क्लास में there are hardly 2-3 students that respond. The rest of the class stays quiet. And मेरे को पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से students आपकी क्लास में हैं. So please try to interact in the class so that I comes to know more about you, as I have not taught you before. So try to communicate with me, try to interact with me. ठीक है? Yes, ma'am. तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था मेरा. वो सारे एम्प्लॉय की सिटी और स्ट्रीट निकालनी है जिनका कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन. तो हमने किया क्या, व्हाट वी हैव डन, वी हैव बेसिकली जॉइन दीज टू टेबल्स. देखो यहाँ पर एम्प्लॉय और वर्क्स को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के बाद बेसिकली हमने वर्क्स इसमें ज्वाइन करने के साथ साथ हमने कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन फेच कर लिया है. ठीक है, और देन जो टपल्स आ गई जिनका कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है, उसमें हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, बिकॉज हमें क्वेश्चन में मांगा था नेम, एम्प्लॉय नेम दैट इज पर्सन नेम और सिटी. तो पर्सन नेम कॉमा सिटी को हमने प्रोजेक्ट करा दिया. ठीक है, अभी मैं समझा रही हूँ और आप साथ साथ लिख रहे हो. आर यू ऑल नोटिंग इट डाउन? Yes, ma'am. उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करना है, एंड यू हैव टू नॉट यू डोंट हैव टू सी द सोल्यूशन. ठीक है, just try to use your mind. अभी you are just studying in the class, and after some time when you do your self study, just try to do the same question again. ठीक है, क्योंकि हम जब रिलेशनल कैलकुलस करेंगे उसमें यही सेम क्वेरीज को हम बाय यूजिंग रिलेशनल कैलकुलस सॉल्व करेंगे. So ये question number of times has been come in exam. Moreover, the same question has been come in many competitive exams. जिसमें इन्होंने कोई भी 2-3 queries इसमें से उठाई हैं, or they have asked you to write the query in 3 languages. One is your relational algebra, one is your tuple relational calculus, and domain relational calculus. So we'll be doing this calculus thing in the next continuous class. ठीक है, तो अभी हम relational algebra से इसको solve कर रहे हैं. Now just read out the third question. Find the name, street, address and cities of all the residents of employees who work for the First Bank Corporation. अब आपको इसमें सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, उसमें आपको नेम निकालना है, स्ट्रीट एड्रेस भी निकालना है, सिटी भी निकालना है जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और जिनकी सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 पर एनम. ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगेन आपको क्या यूज करना है, यही 2 टेबल यूज करनी है. ठीक है, सैलरी क्या होनी चाहिए, 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन होना चाहिए. बाकी सारी डिटेल आप फेच कर लो. तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सेम चीज है, सेम कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं. क्या है कि कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है, एंड साथ साथ क्या दिया हुआ है, सैलरी भी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए. तो एंड के लिए यू विल यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर एंड. यहाँ पर देखो ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज करोगे. ठीक है, और सैलरी ग्रेटर देन 10,000, वर्क्स ज्वाइन एम्प्लॉय, एंड व्हेन यू गॉट द रिजल्टेंट रिलेशन, उसमें से आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, यू आर प्रोजेक्टिंग द पर्सन नेम, स्ट्रीट एंड सिटी. इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3. It is just same as second query, but in the second query we are projecting all the names and the cities who work for First Bank Corporation. But यहाँ पर हम वही same चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, but और फिल्टर क्या लगा दिया कि जिनकी सैलरी भी 10,000 से ज्यादा है. तो यहाँ पर हमने एंड सैलरी ग्रेटर देन 10,000 कौन सी टेबल में, वर्क्स ज्वाइन एम्प्लॉय टेबल में से ये काम हो जाए. ठीक है, और फिर उसमें से हमने पर्सन नेम और सिटी और स्ट्रीट को प्रोजेक्ट कर दिया. क्लियर है? निशा क्लियर है? निशा गौतम? यस निशा, इज इट क्लियर टू यू? आप लोग क्लास में नहीं हो गया? कौन कौन क्लास में एक्टिवली सुन रहा है? जस्ट रेज योर हैंड एंड दे आर राइटिंग. रेज योर हैंड्स. आयुष, यथर्थ, सुमन, मेहुल, what about others? 7. Priyanka, you are not responding. That means you are not listening to me. Sachin, आप भी respond नहीं कर रहे हो. बस there are only 7 students. कमाल है.
और लॉगिन है 15 बच्चों का। बाकी क्या कर रहे हैं क्लास में? I know it is a festive mood. I know that you might not be in a mood to take class. The similar is with me. I am also not in a mood. But क्या करें? By the way, happy Diwali to all of you. Okay. Now just read the next query. Query number 4 is, इसको solve करके बताओ मुझे. Find the name of all the employees in this database who live in the same city as the company for which they work. मतलब कि आपको उन सारे एम्प्लॉयज का नाम निकालना है जिनका सिटी इज एग्जैक्टली सेम एज द कंपनी दे वर्क अपॉन. कौन कौन सी टेबल यूज करोगे? Employee works for company. Why you are using these three tables? Why don't you use simply employee and company? मैम एम्प्लॉय और वर्क्स आपको एम्प्लॉय को कंपनी से बाइंड करेगा और आपको वर्क्स और कंपनी जो है वो कंपनी और उसकी सिटी से बाइंड कर देगा. हाँ, तो यहाँ पर देयर मे बी सम कंफ्यूजन इन सम स्टूडेंट्स माइंड कि अगर आप खाली एम्प्लॉयर कंपनी को यूज करो क्योंकि उन्होंने मांगा है पर्सन नेम, उन सारे लोगों का नाम जिनकी सिटी इज एग्जैक्टली सेम एज फॉर विच द कंपनी दे वर्क अपॉन. बट आपने खाली एम्प्लॉयर कंपनी यूज करके काम नहीं चलेगा. आपने एम्प्लॉय वर्क्स और कंपनी करना है क्योंकि वर्क नाम की जो टेबल है वो उन सारे एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रही है जो किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय को वर्क से ज्वाइन करना है, फिर रिजल्टेंट टेबल को एम्प्लॉय कंपनी से ज्वाइन करना है. तो यू हैव टू राइट एम्प्लॉय ज्वाइन वर्क्स ज्वाइन कंपनी. और ये सारा ज्वाइन कौन सा है? वी आर यूजिंग नेचुरल ज्वाइन बिकॉज ऑल दीज थ्री टेबल्स हैव वन कॉमन एट्रीब्यूट्स इन देम एंड देन आउट ऑफ देम दैट वी आर जस्ट प्रोजेक्टिंग द पर्सन नेम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन विल लुक लाइक, इसका सोल्यूशन जो है विल लुक लाइक this employee join works join company, and in the resultant relation you are just fetching out what you are doing. You are fetching out the person names. ठीक है, okay. Now just read the next query. Query number 5. Find the names of all the employee who lives in the same city and on the same street as do their managers. चलो, अब यहाँ पर एक चीज है, आपने एम्प्लॉय के फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज जिनकी सिटी इज एग्जैक्टली सेम एज देयर मैनेजर्स. यही है ना क्वेश्चन? हु लिव्स इन द सेम सिटी एंड वर्क्स. नहीं, बस इतना ही निकालना है. हु लिव्स इन द सेम सिटी एंड ऑन द सेम स्ट्रीट एज डू देयर मैनेजर्स. तो यहाँ पर एक तो आपको दो टेबल यूज करनी है. वन इज योर एम्प्लॉय टेबल एंड वन इज योर मैनेजर्स टेबल. अब आपको पता है कि जो मैनेजर होता है उसका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? एम्प्लॉय टेबल में उसका डेटा होगा. और एम्प्लॉय टेबल में जो मैनेजी है, मतलब कि जिसको कोई मैनेज कर रहा है, उसका डेटा भी होगा. तो यहाँ पर वो सारे पर्सन नेम आपके एम्प्लॉय टेबल में हैं जो मैनेजर है और जो मैनेजी है. जो मैनेज हो रहे हैं मैनेजर से वो भी पर्सन नेम है और जो किसी को मैनेज कर रहे हैं वो भी पर्सन नेम के अंदर है. तो एम्प्लॉय में से आपको सारा डेटा मिलना है. बट यहाँ पर आपको मैनेजर्स टेबल क्यों यूज करनी है? बिकॉज आपको उन पर्सन जिनका जो आपको वो फेच नहीं करना कि जिसका पर्सन नेम इज इक्वल्स टू मैनेजर नेम है. नो, पर्सन नेम और मैनेजर नेम में से जिनकी सिटी सेम है वो आपको फेच करना है. तो इसके लिए आपको उस टेबल के करस्पॉन्डिंग टपल्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा. तो वो हम कैसे करते हैं? जस्ट सी द सॉल्यूशन है. ओके, यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले इन दोनों टेबल को ज्वाइन किया ओवर द पर्सन नेम.
ठीक है, तो आप नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो, एम्प्लॉय ज्वाइन मैनेजर्स। अब आप कर क्या रहे हो, उसमें जो ज्वाइन ऑपरेटर आप लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो बेसिकली, जब मैनेजर, ये देखो, ये हमने, ये जो होता है ना एम्प्लॉय टू, ये यहाँ पे रीनेम किया हुआ है मैंने, देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ रीनेम ऑपरेटर आई हैव यूज्ड एंड आई हैव रीनेम दिस एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय टू। अब मैं कर क्या रही हूँ कि अब मैंने एम्प्लॉय नाम की टेबल है ना, उसको दो उसमें बदल दिया, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय टू। तो एम्प्लॉय टू का पर्सन नेम एंड एम्प्लॉय की स्ट्रीट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एम्प्लॉय टू लिख दिया इन्होंने, एक मिनट, बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय टू का पर्सन नेम एंड एम्प्लॉय टू की स्ट्रीट इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय का स्ट्रीट एंड एम्प्लॉय की सिटी। क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी है, एक मिनट, ये देखो इसका सोल्यूशन ये वाला नोट करो, ये थोड़ा सिंपल है। यस, आर यू ऑल लुकिंग टू दिस स्क्रीन, ये जो ब्लू कलर First का, part, na ma'am? हाँ जी, हाँ फर्स्ट पार्ट, देखो वही है कि एम्प्लॉय और मैनेजर्स को ज्वाइन किया है, देन उसमें आप ज्वाइन कंडीशन क्या लिख रहे हो, ज्वाइन कंडीशन आपने लिखी है कि आपका इन दोनों के अंदर जो मैनेजर नेम है वो आपका इक्वल होना चाहिए ई नेम, ई नेम बेसिकली पर्सन नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय टू है वही आपने रीनेम किया है एम्प्लॉय को एम्प्लॉय टू से, एम्प्लॉय टू का जो पर्सन नेम है और मैनेजर नेम आपके आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको मैनेजर की डिटेल निकालनी है, और एंड एम्प्लॉय की जो स्ट्रीट है, अब ये आपकी जो एम्प्लॉय ओरिजिनल टेबल है, हर एक इसका इसमें होता क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग टपल है ना वो दूसरी टपल से, हर टपल से कंपेयर होती है। तो एक आपने उसको एक एक आपने अलाइस बना दिया एम्प्लॉय टू, एक बना दिया एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की स्ट्रीट इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय टू की स्ट्रीट, और एम्प्लॉय की सिटी, बेसिकली एंड बिकॉज वी हैव टू वर्क इन द सेम सिटी एंड ऑन द सेम स्ट्रीट, तो आपको दोनों टेबल के आपस के स्ट्रीट को कंपेयर करना है। तो एम्प्लॉय की स्ट्रीट और दूसरे एम्प्लॉय की स्ट्रीट, एम्प्लॉय की सिटी, दूसरे एम्प्लॉय की सिटी आपस में इक्वल होनी चाहिए और उनके नाम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने किया, अब इसमें जो रिजल्टेंट आपका आएगा उसमें से आपने क्या प्रोजेक्ट कर लिए, सारे पर्सन नेम, ठीक है। तो फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु लिव इन द सेम सिटी एंड इन द सेम स्ट्रीट एज डू देयर मैनेजर्स। तो आपने पहले तो एम्प्लॉयर मैनेजर्स टेबल को ज्वाइन किया, और उसमें किस बेसिस पे ज्वाइन किया, सारी टपल्स जिनकी सिटी और स्ट्रीट आपस में बराबर है, और जिनका मैनेजर नेम और पर्सन नेम आपस में बराबर है, ठीक है, वो उस बेसिस पे आपने ज्वाइन कर लिया। देन उसमें से आपने क्या निकाल दिया, सारे नेम ऑफ द पर्सन्स, तो आपने ई नेम निकाल दिया उनके, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेरी नंबर 4। Okay, now just read out the query number 5th. Find the names of all the employees who live in the same city and on the, acha. Find the name of all the employees who do not work for First Bank Corporation. Acha.
यहाँ पे ना ये जो है हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें उन सारे एम्प्लॉय के नेम निकालने हैं दैट डू नॉट वर्क फॉर द फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर वी आर टेकिंग एन अजम्पशन कि जो हमारा डेटाबेस है ना उसमें जो एम्प्लॉय के अंदर जो पर्सन नेम है दे मस्ट बी वर्किंग इन one company. This is the assumption we are taking to. If this is a relational table of some particular company and we have all these tables into it, तो जो एम्प्लॉय का जो पर्सन नेम है यहाँ पर अगर हम assumption लेके चलते हैं कि सारे एम्प्लॉयज किसी एक कंपनी में काम जरूर करते हैं और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो फर्स्ट कॉर्पोरेशन में काम नहीं करते उनके उनके पर्सन नेम निकाल दो, तो हमारा ये काम इजी हो जाएगा। उसमें हम करेंगे क्या, सिंपल वर्क्स टेबल में से प्रोजेक्ट कर देंगे पर्सन नेम जहां पर कंपनी नेम इज नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। कैन वी डू लाइक दिस? ये क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है देखो। ये देखो सिंपल वी हैव यूज दिस वर्क टेबल, ठीक है। उसमें से हमने सिलेक्ट किया कंपनी नेम नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, उसमें से हमने क्या प्रोजेक्ट कर लिया, पर्सन नेम। If we are taking an assumption that all the people work for exactly one company, then we can simply use the one table called the works table, और उसमें से we are just selecting all the tuples that do not have this column name company name equals to first bank corporation। वो सारी टपल्स आ गई, उन टपल्स में से हमने क्या प्रोजेक्ट कर लिया, पर्सन नेम। क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये अजम्पशन हम नहीं लेके चलते, अगर हम ये अजम्पशन नहीं ले रहे, मतलब कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ ऐसे नाम भी हैं दैट डू नॉट वर्क फॉर एनी कंपनी, वैसे इट्स नॉट पॉसिबल, दे मस्ट बी वर्किंग फॉर सम कंपनी, बट इफ द पीपल मे नॉट वर्क फॉर एनी कंपनी, अभी फिलहाल दे आर एट होल्ड, मतलब दे कोई भी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है? तो अब अगर हम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम नहीं कर रहे और किसी में भी काम नहीं कर रहे, तो फिर भी उनका डेटा भी आना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यही सेम चीज कर रहे हैं। देखो हमने यही सेम चीज करी, यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली क्वेरी देखो कि हमने कंपनी नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, पहले हमने वो सारी टपल्स निकाल ली, उन सारे लोगों का डिटेल निकाल लिया जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरा वाला केस देखो, फर्स्ट कंपनी नेम इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है, जहां पर वी हैव फेच्ड द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय दैट वर्क्स फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, फिर इसको माइनस कर दिया एम्प्लॉय टेबल से और फिर उसमें फेच कर दिया पर्सन नेम। तो आपको पता है माइनस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? हाँ जी, माइनस कैसे काम करता है? अगर मैं लिख रही हूँ R1 माइनस R2 तो क्या आंसर आएगा? हम R1 में से R2 के एलिमेंट्स को मूव कर देगा। क्या क्या दोबारा बोलो आयुष। मैम ये आपको R1 में से R2 के जितने एलिमेंट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। एलिमेंट्स बोलेंगे उसको, व्हाट इज द राइट वर्ड यू विल यूज? टपल्स। R1 और R2 को अगर आप माइनस करते हो, इफ यू राइट लाइक R1 माइनस R2, then all the tuples of R2 that are in R1 will be removed and only the tuples that are in R1 सिर्फ वही आपको शो होंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपने, क्योंकि जो आपकी एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसके अंदर सारे पर्सन का नेम है, अब आपने वो वाले पर्सन नेम माइनस कर दिए जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, तो कौन से एम्प्लॉय बचे, कौन से पर्सन नेम के एम्प्लॉय बचेंगे? जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम नहीं करते या किसी भी कॉर्पोरेशन में काम नहीं करते, ठीक है। सो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर ऑप्शन की। हैव यू नोटेड डाउन? इसको नोट कर लिया सबने? यस मैम। ठीक है, मेहुल अटेंडेंस भेज देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the name of the employees who earn more than every employee of the same small bank corporation। अब यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब आपको करना क्या है, सारे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, सारे एम्प्लॉय के नाम चाहिए जिनकी सैलरी बाकी सारे एम्प्लॉय से ज्यादा है
कौन सी कंपनी के? स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के। तो इसमें फिर आप रीनेम ऑपरेटर का यूज करोगे, और क्योंकि आपको करस्पॉन्डिंग टपल्स को कंपेयर करना है आपस से, मतलब कि आप क्या करोगे, पहले तो सारे स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज निकाल दोगे, और आपको उन सारे एम्प्लॉय के डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो देखने में बड़ा लग रहा है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने देखो क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने अपनी की जो वर्क्स नाम की टेबल है ना, उसको रीनेम कर दिया वर्क्स 2 में, ठीक है। देन व्हाट यू हैव डन इज, आपने अपनी वर्क को नेचुरल ज्वाइन कराया है वर्क्स 2 के साथ, मतलब कि आपके पास वर्क नाम की दो एक ही टेबल है ना, तो आपने वर्क्स और वर्क्स 2 को ज्वाइन कर दिया है, वो एक ही टेबल पर उनका नाम चेंज करके आपस में एक टेबल को दो टेबल बना दिया है ज्वाइन करके। और किस बेसिस पे ज्वाइन किया है? जहां पर वर्क्स की सैलरी अभी आप लेस देन निकाल रहे हो, वर्क्स की सैलरी इज लेस देन वर्क्स 2 की सैलरी, एंड वर्क्स 2 का कंपनी नेम स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। तो अभी आपने स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के जितनी भी आपकी टपल्स है ना, और उनकी सैलरी कंपेयर कर रहे हो आप वर्क्स नाम की टेबल से जिनकी सैलरी कम है। तो यहाँ पर आपने ना वर्क्स और वर्क्स 2 को ज्वाइन किया है, और उन सारे पर्सन का नाम निकाला है जिनकी सैलरी कम है स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के सैलरी से, उन सारे पर्सन का नाम निकाला है। इस वाले पार्ट का ये मतलब है। What you have done is you have just joined this works and this works too, and किस बेसिस पे ज्वाइन किया है? ज्वाइन कंडीशन क्या लगाई है कि वर्क्स की सैलरी शुड बी लेस देन वर्क्स 2 की सैलरी, एंड वर्क्स 2 का कंपनी नेम स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। फिर उसको माइनस कर दिया इससे, तो इसमें क्या कौन से पर्सन नेम आ जाएंगे? जिनकी सैलरी ज्यादा है स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के सैलरी वाले एम्प्लॉयज से। तो ये माइनस ऑपरेटर की हेल्प से आपने इस कंडीशन को सॉल्व कर दिया है। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। सिंपल क्वेरीज तो हो जाएंगी, जो नीचे वाली क्वेरीज है ना थोड़ी सी टफ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अच्छा एक एक क्वेश्चन है 3.8, इसको सॉल्व करना। सेम डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस इज सेम, दैट इज जो वाली फिगर है ना, एम्प्लॉय वर्क्स और मैनेजर्स, 3.39 फिगर है। गिवन एक्सप्रेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर ईच रिक्वेस्ट। ये जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई है इस पे आपको लिखना है। और ये लास्ट देखो, लास्ट को देखने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस डिवीजन ऑपरेशन ओवर हियर। डिवीजन का क्या काम होता है, कैसे डिवाइड होता है? अगर मैंने लिखा R1 डिवाइडेड बाय R2, क्या आंसर आएगा? हाँ बोलो। देखो डिवीजन ऑपरेशन जो होता है ना, वो काइंड ऑफ सिमिलर टू माइनस ऑपरेशन होता है, बट इसमें होता क्या है कि जैसे आपने लिखा R1 डिवाइडेड बाय R2, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि R2 के जितने भी एट्रीब्यूट्स है शुड बी द सबसेट ऑफ R1। मतलब R1 के अंदर अगर एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है, तो R2 के अंदर अगर सैलरी और डेजिग्नेशन है, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्योंकि R1 में भी है वो माइनस हो जाएगी, और सारे एम्प्लॉयज का आंसर आ जाएगा। रिजल्ट विल बी ओनली एम्प्लॉय नेम। और कौन से